Good morning, dear students. In CSS, till now I have taught you about the static web pages, dynamic web pages, and except that, font properties, text properties. Today, our topic is background properties. So, by using the background property, we can change the background color or the background image. If you want to change the background color, then you have to use the background property. For changing the background color, here is the property background color, and how you will use it. You can see its syntax: background color, after that colon and value. So value can be hexadecimal value, RGB value, or the color name, and after putting the value you have to put the semicolon. The next property is background image. Dear students, as you can change the background color in the CSS, in the same way you can change the color of the background image of the text, paragraph, or the page. Means you can change the image, you can put the image at the paragraph h1 heading 1 or on the whole web page. For that, what you have to do, you have to use the background image property, and you have to write background image colon after that value. Here the value will be URL after that bracket, and in the bracket name of that file, means which image you want to put at the background image. So I'm showing you. In the first example, p colon URL, after that the name of the image, after that semicolon, means this image will come in the background. Next property, background repeat. Dear students, when you put image on the background, even it may be the paragraph or the page, the image is repeated. By default the image is repeated, and if you don't want to repeat it, then you have to put value background repeat after that value, background repeat after that value. If you don't want to repeat, then no repeat. And if you want to repeat the image horizontally or vertically, then you have to give the value. For horizontally repeat you have to put repeat x, for vertically you have to put repeat y. You can see in the syntax background repeat after that value, and values can be no repeat, repeat x, repeat y, and repeat. So I told you that by default value is repeat, and if you don't want to repeat, then write no repeat. Even I will do the practical also, don't worry. Next one, background shorten property. Dear students, till now I told you that how to change the background color, how to put the image at the background, or repeating image. So these are the three different properties, and you can use all these three properties at a single time. If you want to write these all the three statement in a single, then it is known as the shorthand. And how you will write in the shorthand? Have a look in the body tag, body background, after that color.
color is in the RGB value, and after that URL, the name of file which you want to, the name of image which you want to put at the background, and after that no repeat, you don't want to repeat. Firstly it is color, and secondly it is the image, and after that repeat or no repeat. It is known as a shorthand. This is the example of inserting image or changing the color. I will do the practical, don't worry. Next one is margin. Dear students, if you want to put the margin to any of the element of the CSS, then you can use the margin property. For changing the margin, you can use the properties margin top, margin right, margin bottom, and the margin left. And how you use it? You have to write margin side. You want to give the margin top right, and after that value. Value can be in the pixels, percentage, or pt, points. Here is the example, and I will. So dear students, now I am translating full concept in the Hindi. प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक जो हमने CSS के अंदर उसमें हमने एक तो आपको ये बताया था कि स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं और डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं। उसके अलावा आपको ये बताया कि CSS की स्टेटमेंट्स को जब हम अप्लाई करते हैं तो हम उसको इनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। उसके बाद मैंने आपको फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया। आज मैं आपको बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगा। तो स्टूडेंट्स, आप CSS के द्वारा बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड में आप अगर कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आप इमेज लाना चाहें, इमेज ला सकते हैं। तो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए बैकग्राउंड कलर एक प्रॉपर्टी होती है। आप बैकग्राउंड कलर लिख के उसके आगे जो भी आप कलर देना चाहें, बैकग्राउंड में जो कलर लाना चाहते हैं वो कलर, रेड, ग्रीन, येलो, आप चाहें तो वो वैल्यू आप RGB भी दे सकते हैं और हेक्साडेसिमल वैल्यू भी। तो RGB वैल्यू जो हेक्साडेसिमल वैल्यू भी कोड के अंदर होती है, आपको कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है बैकग्राउंड इमेज। स्टूडेंट्स, आप बैकग्राउंड के ऊपर कोई इमेज भी ला सकते हैं। तो बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लाने के लिए बैकग्राउंड इमेज नाम की एक प्रॉपर्टी है, उसके आगे आपको वैल्यू देनी होती है जो भी आप इमेज बैकग्राउंड में लाना चाहते हैं। तो इसको आपने यूज़ कैसे करना है? आप बैकग्राउंड इमेज लिखकर बीच में हाइफन लगाना है, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, आफ्टर दैट कोलन। कोलन के बाद जो वैल्यू है, वैल्यू के अंदर आपने URL और URL के अंदर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद उस फाइल का नाम जो फाइल आप बैकग्राउंड में लाना चाहते हैं, और ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन। तो बैकग्राउंड इमेज आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। तो आप बैकग्राउंड में कोई इमेज है, वो इमेज आपकी के पीछे ला सकते हैं, पूरे वेब पेज पे ला सकते हैं, हेडिंग 1 पे, कहीं पर भी ला सकते हैं। किसी भी एलिमेंट के ऊपर आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो आप इमेज ला रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो इमेज रिपीट होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो इमेज रिपीट नहीं करनी, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड रिपीट। तो इस प्रॉपर्टी को आपने यूज़ कैसे करना है? बैकग्राउंड रिपीट कोलन, उसके बाद वैल्यू। तो अगर आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट और उसके बाद कोलन और उसके बाद नो रिपीट। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने आपको बताया कि रिपीट होती है इमेज। आप उस इमेज को हॉरिजॉन्टली रिपीट करना चाहते हैं, वर्टिकली रिपीट करना चाहते हैं,
ऐसा भी आप मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इमेज को हॉरिजॉन्टली रिपीट करना चाहते हैं तो आप रिपीट एक्स लिखेंगे, बैकग्राउंड रिपीट कोलन रिपीट एक्स। अगर आप उस इमेज को वर्टिकली रिपीट करना चाहते हैं, बैकग्राउंड रिपीट आफ्टर दैट कोलन एंड रिपीट वाई। अगर आप पूरे पेज पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली रिपीट करना चाहते हैं तो आप लिखेंगे बैकग्राउंड रिपीट कोलन रिपीट। तो बैकग्राउंड की हमने अभी 3 प्रॉपर्टी की, बैकग्राउंड पे कलर लाना, इमेज लाना और उसको रिपीट करना। तो ये तीनों आप एक ही स्टेटमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जब आप इन तीनों को एक ही स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करेंगे तो उसको कहा जाएगा शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। तो इन तीनों को आप एक ही स्टेटमेंट में कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। देखेंगे बॉडी ब्रैकेट बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद कलर दिया हुआ है, कलर की RGB वैल्यू है। उसके बाद URL के अंदर इमेज का नाम, और उसके बाद अगर आप उसको रिपीट नहीं करना चाहते तो नो रिपीट। तीनों वैल्यू आ गई हैं, कलर भी आ गया है, इमेज भी आ गई है और रिपीटिंग वैल्यू भी आ गई है। ये आपका प्रोग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर ये आपके इमेज के जितने भी तीनों टैग हैं उन तीनों टैगों को यूज़ किया गया है। मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है मार्जिन प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मार्जिन देना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट का, मार्जिन का मतलब ये है लेफ़्ट साइड, राइट साइड, टॉप में या बॉटम में स्पेस छोड़ना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट के, तो आप मार्जिन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने यूज़ कैसे करना है, मान लो आप किसी भी पैराग्राफ के टॉप में स्पेस छोड़ना चाहते हैं तो आपको मार्जिन टॉप नाम से एक एट्रीब्यूट है, उसको यूज़ करना है। मार्जिन टॉप कोलन, उसके बाद वैल्यू, वो वैल्यू आप पिक्सल में, पॉइंट में या परसेंटेज में दे सकते हैं।